آپ کو بتائیں حکومت کا خسارے کا شکار اداروں کی نشکاری کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک مارکیٹ میں تقریب سے خطاب۔ کہا پی آئی اے کی نجکاری جون میں مکمل کر لیں گے۔ کہا ایف بی آر میں ڈیجیٹائزیشن پر کام کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے بڑے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سی پیک فیز 2 پر فوری کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا فیز 1 کے تحت چین سے کاروبار منتقل کیا جائے گا۔ توانائی کے شعبے میں نقصانات پر قابو پانے کی ضرورت ہے، نقصان کو نہیں روکیں گے تو قیمتیں بڑھیں گی۔ رمضان میں مہنگائی بڑھی مگر مجموعی سطح پر مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی بات کی ہے، اس کو اگنور نہ کریں آپ۔ 5% کی گروتھ ہوئی ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ گروتھ جو ہے انشاءاللہ ایگریکلچر میں کنٹینیو رہے گی، کراپس پہ، ڈیری اینڈ لائف سٹاک میں۔ اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سارے لیورز جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو گروتھ لیورز ہیں، جو ہم نے فائنینسنگ کرنی ہے، جو ہم نے کسانوں کی ہیلپ کرنی ہے، جو ہم نے فری لانسرز کی کرنی ہے، اس کا فنڈ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ These are going to be 2 very important levers of growth inshallah during the next fiscal year. If we don't do the structural reforms, اگر ہم یہ تھیفٹ اور لیکیج نہیں روکیں گے، ہم اس وشیس سرکل میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں پھر اس کو وہ سسٹینیبل کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی انشاءاللہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز آئیں گی، یہ جو ہم اس وشیس سرکل سے نکلیں گے، ہمارا انڈسٹری کے ساتھ جو ہے رابطہ ہے اور انشاءاللہ ڈیورنگ دا بجٹ سیشن اس پہ سب ڈسکشن ہوگی۔ آف کورس وی وانٹ دا انڈسٹری ٹو گرو۔ پی آئی اے، آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس، دیز آر 2 which are now in advanced stages۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا، وہ ہم ہر دن اور ہر ویک اس کو مانیٹر کر رہے ہیں till we get into the bidding process، تاکہ انشاءاللہ بائی جون ٹائم فریم ہم ان کو we can take it through the finishing line because it's important۔ ڈسکوز ہیں ان کی پہلے گورننس کر کے وی آر ویری کلیئر کہ اس کو ہم نے پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے ایز وی گو فارورڈ۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ایس او ایز ہیں ان پہ ابھی کام شروع ہوا ہے، لیکن وی ہیو ٹو بلڈ دیٹ پائپ لائن۔ چیزیں ہیں ہمارے پاس، ٹریک اینڈ ٹریس ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو ہمارا کس کا قصور ہے؟ وہ اس کا آئی ایم ایف کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ کم از کم جو لاس والے ادارے ہیں ان کو تو ہم اس پائپ لائن میں لے کر جائیں، لیکن اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے۔ آپریشنل ایکسپینسز ہیں ان کو ہم نے نیچے لانا ہے گورنمنٹ نے، اور جو پی ایس سی پی ہے اس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف لے کے جانا ہے۔ لیکیجز روک دیں آپ، 2-2.5 ٹریلین کا آپ کا ایڈیشنل فنڈ آ جائے، یہ کہاں جائے گا؟ اٹ ول گو ٹورڈز دا مارجنلائزڈ پاپولیشن ان دا فرسٹ انسٹنس۔ جو بی آئی ایس پی کا پروگرام ہے اس کو ہم نے فردر اس کو ہم نے جنرس کرنا ہے۔ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے جو ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں شروع کیا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انہی کی مدد سے۔ 8 تاریخ کو ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کے لیے آر ایف پی ایشو ہو جائے گا ڈیجیٹلائزیشن کے، اور یہ ایسا کنسلٹنٹ ہم لائیں گے جس نے پاکستان جیسی ایمرجنگ مارکیٹس میں کام کیا ہو، تاکہ وہ ڈیزائن بھی کام کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کام کریں۔ اس کا ٹائم فریم کیا ہے؟ انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل وی ول بی اپوائنٹنگ دیٹ کنسلٹنٹ اینڈ اناؤنسنگ دیٹ کنسلٹنٹ۔ ہماری خواہش ہے کہ بائی دا ٹائم دیٹ وی ریپ اپ دس فسکل ایئر، سو اینڈ جون ارلی جولائی تک کم از کم اسٹاف لیول اگریمنٹ تک ہم پہنچ جائیں۔ اس سال رفلی 3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی جو ہماری سافٹ ویئر ریلیٹڈ ٹیکس ہوگی۔ سپر ٹیکسز اور ونڈ فال ٹیکسز اور یہ سارا سلسلہ کب تک ہم رکھیں گے؟ یہ کب تک ہمارا چلے گا؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے، رائٹ؟ اور اس میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے اس کو پرماننس میں لانے کی۔ اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن چاہیے ہوں گے۔ انفلیشن کا بیس ریٹ اب آنا شروع ہو جائے گا۔ صرف فوڈ انفلیشن منتھ آن منتھ تھوڑی سی بڑی ہے، اس کی وجہ یہ رمضان کا انفارچونیٹ افیکٹ ہوتا ہے، لیکن مائی اون سینس ہے کہ یہ انفلیشن ریٹ جو ہے یہ انشاءاللہ بتدریج کم ہوگا ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر بیس ریٹ کی وجہ سے، اینڈ وی آر ہوپنگ کہ دا پالیسی ریٹ ول فال۔ ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ایکسچینج احمد چنائی نے نقصان میں رہنے والے اداروں کی نشکاری کے عمل کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے اس کا فائدہ سرمایہ کاروں کو بھی ہوگا۔ مزید بتا رہے ہیں وسیم افتخار۔ جی بالکل، کاروباری ہفتے کے آج آخری روز ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ ہائی جو ہے وہ دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس میں ہم نے دیکھا کہ 67,307 کی سطح پر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ 100 انڈیکس میں کچھ نیگیٹو فگرز بھی شو ہوئے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ڈائریکٹر احمد چنائی سے جانتے ہیں۔ احمد صاحب، ریکارڈ پہ ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے، آج بھی نیا ریکارڈ قائم ہوا، اس کے بعد پھر مارکیٹ نے نیگیٹو بھی پرفارم کیا۔ کیا صورتحال رہی ہے مجموعی طور پر اور آنے والے وقتوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मौजूदा सूरत हाल जो है वो इस बात की गमाज़ी कर रहा है कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सही सिमत में जा रहे हैं। पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी और अब जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं उन्होंने भी इस अज़म का इज़हार किया है कि जो पीछे काम हुआ है उसको वो कैरी ऑन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीछे जो काम हुआ था उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था, बिलखुसूस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन इनफ्लो काफ़ी आया था, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्टेबल भी हो गई, मार्केट बेहतर भी हो गई। ये रोज़ का अप एंड डाउन अपनी जगह पे ज़रूर चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक्टिविटी है, एक्टिविटी जनरेट हो रही है। लोग माल बेचना चाहते हैं तो बिक जाता है, ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है वो हेल्दी एक्टिविटी है। इसके अंदर लोगों को एक प्राइस का लिवरेज भी मिल जाता है, लोगों को जो है वो एक इत्मीनान भी होता है कि जी ये मार्केट परफॉर्म कर रही है। मार्केट परफॉर्म इंशाल्लाह इसलिए करती रहेगी कि हमारा जो बेसिक अब इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सब्सिडीज़ को हटाने की बात की गई है, उसमें गवर्नमेंट जो है वो फिर लॉस पे नहीं आती। सब्सिडीज़ अगर हट जाए, पाकिस्तान के जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली आगे प्रोग्रेस कर सकता है। जी बिल्कुल, ये तो अहमद चुनानी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मुख्तलिफ जो वो इदारे जो कि नुकसान में जा रहे हैं, कौमी इदारे, उनकी निजकारी का जो हुकूमती फ़ैसला है बिलखुसूस PIA का वो खुशाइंद है, और इसके साथ साथ इस फैसले का जो है वो इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा अगर निजकारी होती है। इसका कहना है कि स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट में मज़ीद जो है वो सरमायाकारी आएगी और स्टॉक मार्केट जो है मजीद रिकॉर्ड हाई बनाएगी। जी, रुपए की कदर में बेहतरी, इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए से नीचे आ गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 3 पैसे से कम होकर 277 रुपए 80 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि एक हफ्ते में मुल्की मजमूई ज़खायर 3 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे के बाद 13 अरब 42 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं, जिसकी वजह से रुपए पर प्रेशर कम हुआ है। साबिक सीनियर नायब सदर काटी माहीन सलमान का कहना है कि IMF ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 18% सेल्स टैक्स आयद करने की शर्त रखी है। ऐसे फैसलों से गरीब मजीद मुश्किलात में आ जाएगा। तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। देखा जाए, मुल्क की मईशत के लिए मजीद सख्त फैसले किए जाने जा रहे हैं आगे चलकर। जैसे कि कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है 18% सेल टैक्स आयद हो जाएगा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या आम आदमी या इंडस्ट्रियलिस्ट इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? यहाँ पे जानते हैं कोरंगी एसोसिएशन की साबिक सीनियर नायब सदर जो हमारे साथ माहीन सलमान मौजूद हैं। क्या दिख रही जो फैसले अब होने जा रहे हैं, पहले भी हुए हैं, अब मजीद फैसले होने जा रहे हैं? फ़ैसलों का हम क्या कर सकते हैं, हमारे बिहाफ के ऊपर लोग करे चले जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का ये फ़ैसला नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का फ़ैसला IMF नहीं है। दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स प्रूफ कर चुके हैं, एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपके पास सामने प्रूफ्स हैं कि IMF के प्रोग्राम्स ने जितनी तबाही फैलाई है मुल्कों में उतनी किसी ने नहीं फैलाई। लेकिन फिर भी अगर ये जो हमारे ऊपर हुकूमत एक बैठाई गई है तो वो उसकी तरफ जाना चाहती है तो प्लीज़ जाए। लेकिन अगर एक साथ आप 50 रुपये पर लीटर बढ़ाने की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए 330 का पेट्रोल ख़रीदने की सकत किस में है इस मुल्क के अंदर? या तो आप अपनी तमाम बेनिफिट्स ख़त्म कर दीजिए और जो आपको फ्री लीटर्स में पेट्रोल दिया जाता है वो ख़त्म करके आप भी ज़रा अपनी जेब से दीजिए, फिर मैं पूछूंगी कि ये लेवी लगती है या नहीं लगती है। क्योंकि नाउ दिस इज़ गेटिंग टू मच। आप एक गरीब छोड़िए, आप एक आम पाकिस्तानी के मुँह से निवाला छीनने की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री आप छोड़ दीजिए, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट मीट नहीं करेगी, ले ऑफ्स होंगे, किस तरफ मतलब लेके जाना चाहते हैं आप? प्लीज़ एक्सप्लेन करें, डिफ़ाइन करें। माशाल्लाह बड़े बड़े लोग हमारी काबीना में बैठे हैं, ज़रा बताएं तो सही सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन की बात करें, मुझे ये ना बताएं इतने बढ़ा दिए। आप 100 रुपये बढ़ा दें, लेकिन मुझे सोल्यूशन देना उस 100 रुपये का। अब आप मुझे सोल्यूशन अगर नहीं दे सकते तो आपको कोई राइट भी नहीं है बढ़ाने का। या आप हमारे लिए नहीं बढ़ा रहे, आप पता नहीं किसके लिए बढ़ा रहे हैं। जी, जैसे कि आपने सुना, शदीद कंसर्न देखे जा रहे हैं। जो हुकूमत आगे चल कर फैसले करने जा रही है, बजट में कहा जा रहा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत पे 18% सेल टैक्स आयद होगा। इस पर सनतकारों का ये कहना है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मजीद बढ़ जाएगी, गुड ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाएंगे, इसका तमाम बोझ आवाम पर आएगा। जी, सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन के 4 अजला के नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक जिला गर्दी का नाम जिला कोरंगी
वस्ती का नाम जिला नाजिमाबाद, शर्की का नाम जिला गुलशन और जनूबी का नाम तब्दील करके जिला कराची रखने का फैसला कर लिया। इसके अलावा जिला मलीर, कोरंगी और किमाड़ी के नाम ना तब्दील करने का भी फैसला किया गया है और ज़राए के मुताबिक कराची डिवीज़न के कुल 7 अजला के नामों का हतमी नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्की है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं ताहा मलिक से। ताहा बताइएगा। हुकूमत ने कराची डिवीजन के 4 अजला के नाम तब्दील करने का फैसला किया है। जिला कराची गरबी का नाम जो है जिला कोरंगी तब्दील जिला औरंगी रखने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक जिला कराची बस्ती का नाम जिला नाजिमाबाद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अगर हम जिला शर्की की बात करें तो जिला शर्की का नाम तब्दील करके जिला गुलशन रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जिला कराची जनूबी का नाम तब्दील करके जिला कराची रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मज़ीद 3 अजला के नाम को तब्दील नहीं किया गया, जिसमें जिला मलीर, जिला कोरंगी और जिला किमाड़ी शामिल है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक ज़राए का ये भी कहना है कि कराची डिवीजन के कुल 7 अजला के नामों का नोटिफिकेशन जो है वो जल्द मुतवक्किल है और जल्द आ जाएगा। अच्छा ताहा बताइएगा कि नामों को तब्दील करने का फैसला क्यों किया गया है? देखिए ये सिंध हुकूमत की सवालियत है और सिंध हुकूमत की जानिब से जो है इसका फैसला किया गया है। इसका हतमी फैसला और अपनी नोटिफिकेशन जो है वो सामने आएगा और तभी बताया जाएगा कि नामों को क्यों तब्दील किया गया है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो नामों को जब चेंज किया गया है ये अजला का नाम चेंज करके इलाकों पर रख दिया गया है। जैसे कि हम देखें कि जिला कोरंगी को जो है वो जो है कोरंगी के इलाके को जो है अजला का जो है जिले का दर्जा दिया गया था। इसी तरीके से तमाम जिले के अंदर तमाम इलाकों के अंदर जो मेन इलाके हैं कराची के उनको अजला का दर्जा दिया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अब ये कराची के इलाकों को जिलों का दर्जा दे दिया गया है। नाजिमाबाद को जैसे कि बस्ती का जिला बस्ती को नाजिमाबाद किया गया है, इसी तरीके से जिला शर्की को गुलशन किया गया है। अच्छा ताहा ये भी बताइएगा कि नामों को तब्दील करने के जो फैसला किया गया इस पर अमल दरामद कब से होगा? देखिए इसका ज़राए का ये कहना है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द मुतवक्किल है और नोटिफिकेशन जो है वो जल्द आ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहा मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे। गुज़िश्ता रात जौहर मोड़ के करीब डकैतों की फायरिंग से डिलीवरी बॉय सैयद रहबर अली जाँ बहक हो गया। मकतूल के वालिद ने पुलिस से इंसाफ की अपील दायर कर दी। जी हाँ, इसी पे मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से जो कि मकतूल के वालिद के साथ मौजूद हैं। सलमान बताइएगा। गुज़िश्ता रात एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डकैतों की जानिब से फायरिंग की गई और उसके नतीजे में सैयद अली रहबर नामी नौजवान जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत मुश्किल वक्त है ये, लेकिन कराची किस तरफ जा रहा है? अली रहबर जो हैं वो क्या करते थे, क्या उम्र थी उनकी, कितने बच्चे थे, थोड़ी सी तफसीली बताओ। अली रहबर फूड पांडा का राइडर था, 2 बच्चों का बाप था, अच्छा खिलाड़ी था, अपने दोस्तों में बहुत मकबूल था, मेरा सबसे बड़ा बेटा था। मैं आपसे क्या अर्ज़ करूं, जिसका जवान बेटा चला जाए। मेरी उम्र खुद 70 बरस है और उसकी उम्र 38 बरस थी, इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए। ये बता दीजिएगा कि अली रहबर जो हैं वो फूड पांडा का काम करते थे और गुज़िश्ता रात इनके साथ ये वाक़या पेश आया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? खुलेआम डकैत जो हैं वो शहरियों को मार रहे हैं। अब तक 48 अफराद जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं डकैतों के हाथों। बेटा अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मेरे दादा खुद पुलिस में अफसर थे और उन्होंने निहत्ते हाथों से ऐसे डाकुओं को पकड़ा था जिसके दोनों हाथों में पिस्तौल थे। देखिए बिल्कुल सैयद अली रहबर के जो अहल खाना है वो गम से निढाल है। उनका यही कहना है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ अगर चाहें तो ये हालात कंट्रोल कर सकती हैं। अब तक 48 अफराद जो हैं वो डकैतों के हाथों जाँबाग हो चुके हैं, लेकिन पुलिस डकैती की वारदातें कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। शहरी जो है वो रियासत से सवाल करते हैं क्या कुछ चंद रुपए के मोबाइल फ़ोन के एवज इसी तरह शहरियों की जाने जाती रहेंगी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पुलिस का इदारा काम करता दिखाई देगा? जी शहर कायद में डकैतों ने एक और शहरी की जान ले ली। 4 डाकू ने जौहर पुल पर डकैती के दौरान नौजवान को कत्ल कर दिया। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी जाए वकुआ पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अनुषा बताइएगा। जी बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए कराची के अंदर जो है हम देख रहे हैं कि डाकू बेलगाम हो गए हैं। शहर कायद स्ट्रीट क्राइम की लपेट में आ गए और 48 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। टोटल डकैती मज़ामत पर राज गए। एक और नौजवान जो कि डिलीवरी बॉय था वो जाबाक हो गया। मार उससे यहाँ पर हुई है। मज़ामत करने पर 4 डाकुओं ने फायरिंग की है जिससे वो जाबाक हो गया। एक डाकू जो है वो अवाम के तशद्दुद से जो है वो हलाक बताया जा रहा है। ये वो मेन स्पॉट है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया था।
एक डकैत जो है वो आवाम की जो है वो हत्या चढ़ा है, तशद्दुद की वजह से वो जाबाक हो गया। 3 डकैत जो है वो फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाक़ये के अंदर 2 पुलिस एहलकार भी जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं, जो कि 15 के यहाँ से गुजर रहे थे। डाकू ने देखा कि पुलिस मोबाइल यहाँ से गुजर रही है, तो उन्होंने इस पर फायरिंग कर दी थी। 15 के बताए जा रहे हैं दोनों एहलकार। और ये वो स्पॉट है जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कराची पुलिस जो है वो डाकुओं को लगाम डालने में नाकाम हो गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजान ने SHO शार फैसल को मुअत्तल कर दिया। और हम देख रहे हैं कि नौजवान 70 साल बुजुर्ग शहरी का जो है वो बेटा था, जो कि अंचोली के रिहायशी थे। वादी हुसैन में इसको जो है वो इसकी तस्वीर की जाएगी। नौजवान शादीशुदा था और मोबाइल फ़ोन लूटमार की कोशिश की जा रही थी। इस पुल से वो गुजरा था। हम देख रहे हैं कि कराची पुलिस जो है वो डाकुओं को लगाम डालने में मुकम्मल जो है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। और 48 अफराद 3 महीना भी मुकम्मल नहीं हुए, इसमें 48 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। ये नए आने वाले IG सिंध के लिए भी जो है वो चैलेंज बन चुका है। जी, हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल असर वक्कास की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इजलास में कराची शहर के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। मज़ीद इस पर क्या तफसीलात है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। अभी आपको बताएं कि हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल असर वक्कास की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इजलास में कराची शहर के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया है। आपको बताएं कि हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल असर वक्कास की ज़ेर सदारत ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल असर वक्कास की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी का कॉन्फ्रेंस हुई है। इजलास में कराची शहर के अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इजलास के दौरान यौम अली, ईस्टर, रमजान और आखिरी अशरा, ताज़रात और ईद उल फितर की ताज़रात के हुकूक की सिक्योरिटी लायामत की जायजा लिया गया है। इस सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की तौसीक़ की गई है। इजलास में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए 10 सेक्शन में इजाफा, जबकि जराइम पेशा अफराद की सरगोशी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तारी के लिए मुस्तकिल लायामत तशकील दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। अब आपको बताएं कि कराची के अवाम के संगीन मसाइल, कहीं सीवरेज का पानी जमा, कहीं गटर उबलने लगे। गार्डन के हदूद में सीवरेज के बोसीदा निज़ाम ने शहरियों की ज़िंदगी दुश्वार बना दी है। तो कराची के अवाम के संगीन मसाइल हैं, कहीं सीवरेज का पानी जमा है, कहीं गटर उबलने लगे। गार्डन के हदूद में सीवरेज के बोसीदा निज़ाम ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना रखी है। इलाके की हर दूसरी सड़क गटर के पानी से भर गई है। और इसी पर तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी, जो कि इस वक्त गार्डन के इलाके में मौजूद है। एहसन, बताइएगा वहाँ पर शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, कोई गुजरगाह जो है वो बहाल नहीं है। सूरत हाल इंतहाई जो है वो संगीन है। वो तमाम सड़कें और रास्ते जो हैं वो गार्डन रामस्वामी धोबी घाट के जो हैं वो गटर के गंदे पानी से भर चुके हैं। तमाम सीवरेज का निज़ाम जो है वो सूरत हाल ये है कि जिस तरफ नज़र जाए वहाँ पे गटर का गंदा पानी है। दुकानों के बाहर की बात की जाए तो वहाँ पे जो है कचरा और गटर का पानी है, जिससे इलाका मकीन और दुकानदार जो है वो तमाम परेशानी की शिकार है। कोई नुमाइंदा जो है वो चाहे बल्दियाती नुमाइंदा हो, MNA MPAs हो, कोई जो है वो सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल करने के लिए काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मकीन कुछ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कब से ये सूरत हाल इलाके की? ये कम से कम महीना हो गया है। यहाँ लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लोग ख़वातीन निकल नहीं सकती यहाँ से, रोड पे बच्चे निकल नहीं सकते, स्कूल कैसे जाएँ, सलवारें ऊपर करके जाती हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, हम बेशरम हुए। ये तकरीबन यहाँ का ही नहीं बल्कि पूरे कराची का ये आलम है। ये 22 लोग हुए हैं, बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, इनको तो पता ही नहीं है। अपने घरों में तो बैठे हैं आराम से अपने बच्चों को लेके। हम गरीबों का क्या होगा? ठीक है, बल्दियाती नुमाइंदगान से कोई राब्ता किया है इस हवाले से? जी आए कोई नहीं, आते हैं देख के चले गए। कोई भी रहते हैं यहीं पे, ये नज़दीक करीब में। जो बड़े बड़े अफसर हैं वो आते ही नहीं है, गुजर के चले जाते हैं। दूर से गुजर के चले जाते हैं, नज़दीक आता ही कोई नहीं है। अब क्या करें, किसको बोले? हम खुद ही रोएंगे। आप लोग थोड़ा सा आगे इनको सुना दो तो शायद हमारी सुनवाई हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये कराची शहर था, लोग दुनिया यहाँ पे रोशनियाँ देखने आती थी। आज यहाँ पे ये गंदगी देखने आ रहे हैं कि कराची को देखें गंदा कितना हो गया। 15-20 दिन से हम लोग खुद अपनी सफाई कर रहे हैं, खुद अपना काम कर रहे हैं कि आने वाले में बहुत परेशानी हो रही है। बिल्डिंग के लोग हैं, उसमें कचरा फेंकते हैं, पेपर आता है, थैली आती है, सारे छींटे हमारे कपड़ों पे आती हैं। तो इसलिए हमें खुद अपनी मदद आप करनी पड़ रही है।
ना नमाज़ पढ़ सकते हैं ना रोज़े रख सकते हैं। बिल्डिंग वालों को भी समझाया, वो बोले आप सफाई करवाएं। तो ये आप लोग आएँ, अभी देखें आगे पैगाम पहुँचेगा तो हो सकता है किसी को भाई आ जाए, कोई ऐसी की सफाई वगैरह हो जाए तो सबके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। आवाम जो है वो इंतहाई परेशानी के आलम में है। इलाके में मौजूद होने के बावजूद भी जो है वो टाउन चेयरमैन हो, यूसी काउंसलर हो या MNA MPAs हो, वोट तो ले लिए गए हैं, लेकिन वो जो वादे किए गए थे उनमें से कोई वादा जो है वो वक्त के साथ जो है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी अच्छा एहसन बताइएगा, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि सीवरेज का बोसीदा निज़ाम है, तो कब से सीवरेज का इस तरह का निज़ाम है और इस पर कोई काम नहीं किया जा रहा? देखिए, जो मकीन है वो कहते हैं कि महीने भर से जो है वो सूरत हाल ऐसी है। टाउन चेयरमैन के साथ साथ बल्दियाती इदारों को जो है वो दरख्वास्तें की गई हैं, कंप्लेन की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है किसी भी किस्म की सरकारी मशीनरी जो है वो इलाके में नहीं आई है। गार्डन रामस्वामी धोबी घाट जो मकीन है वो तमाम जो है वो सीवरेज के बोसीदा निज़ाम से जो है वो परेशान है। साथ साथ जो है ये गंदा पानी जो है वो कई बीमारियों का जो है वो सबब बन रहा है। मच्छरों की अफजाइश हो रही है, बीमारियां पैदा हो रही हैं और वो तमाम गुजरगाह जहां से गुजरने वाले हैं वो गंदे पानी का जो है वो शिकार हो रहे हैं। जी गंदे पानी का शिकार हो रहे हैं लोग और इससे बीमारियां भी फैल रही हैं। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बासी अपडेट कर रहे थे। लांजी टाउन की म्यूनसिपल कमिश्नर समेत कई महकमों के अफसरान ने सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी के पहले हुक्मनामे की ही हुक्म अदूली कर दी। अफसरान की दफातर से गैर हाज़िरी मामूल बनी हुई है। दीगर टाउन्स की तरह लांजी टाउन की इमारत भी दफ्तरी औकात कार के दौरान भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। खाली कमरों में AC और पंखे भी चलते दिखाई दिए। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सिंध की नई काबीना तश्कील पा चुकी है और मिनिस्टर बनाए गए हैं लोकल गवर्नमेंट के सईद गनी, जिनकी जानिब से पहला हुक्मनामा ही बल्दियाती अफसरान को ये दिया गया था कि वो वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाए। इससे कबल भी जब मिनिस्टर थे लोकल गवर्नमेंट के सईद गनी तो उनकी जानिब से सरप्राइज़ विज़िट किए जाते थे, मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों के हाज़िरियाँ चेक की जाती थीं और टाइमिंग को चेक किया जाता था। हालिया अहकामात जो कि पहले अहकामात थे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट बनने के बाद सईद गनी के, उसको हवा में उड़ाने का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। बल्दियाती अफसरान की जानिब से 25 टाउन हुकूमतों में बदकिस्मती से यही सूरत हाल दिखाई देती है और ख़ास तौर पे जुम्मे के रोज़ तो अफसरान का दफातर का रुख ना करना मामूल बना हुआ है। लांडी टाउन से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, 1 दर्जन के लगभग यहाँ पे डिपार्टमेंट हैं जिनका मातहत अमला तो मौजूद है, जो छोटे ग्रेड के मुलाजमीन हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन अफसरान को जो है वो उनकी आराम तलबी जो है वो लेडूबी है, दफातर का रुख नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे बेशतर दफातर में ना सिर्फ ये कि ताले पड़े हुए हैं, जो दफातर खुले हुए हैं वो वीरान हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से वहाँ पर जो है तवानाई का ज़िया जो है वो हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अफसरान सीटों पर मौजूद नहीं हैं, ना म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि मुंतखब नुमाइंदे भी जो है वो सीटों पर दिखाई नहीं देते हैं ताकि चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जब सरबराह ही जो है वो वायलेशन में मुलव्विस होगा, म्यूनसिपल कमिश्नर सीट पर नहीं आएगा, तो मातहत अफसरान दीगर डिपार्टमेंट के अफसरान जो है वो किस तरह आएंगे, इस पर फौरी गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ख़तीर रकम जो है इन मुलाजमीन को, इन अफसरान को जो है वो आवाम के टैक्सों से जो है तनख्वाह की सूरत में अदा की जाती है, मगर उसके हिसाब से जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को ये पूरा नहीं कर रहे हैं। जी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपस में इंचार्ज की तैनात। यूनिवर्सिटी की 20 साला तारीख में पहली बार कराची के दोनों कैंपस के इंचार्ज की तकर्री की गई। अब्दुल हक कैंपस के इंचार्ज डॉक्टर शाहिद इकबाल, जबकि गुलशन इकबाल साइंस कैंपस के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद जाहिद को तैनात किया गया। तफसीलात इसी पर जान लेंगे आयमा खान से। आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के दोनों कैंपसेस में जो है वो इंचार्जेस तैनात कर दिए गए हैं। वाइस चांसलर ने जामिया की पर्सनल प्रिंसिपल सीट कराची से बाकायदा मुंतकिली की जानिब जो है वो पहला कदम उठा लिया है। यूनिवर्सिटी की 20 साला तारीख में पहली बार कराची के दोनों कैंपसेस के इंचार्ज की तकर्री कर दी गई है। कायम मकाम रजिस्ट्रार की जानिब से बाकायदा 2 नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। गुलशन इकबाल कैंपस का इंचार्ज जो है वो डॉक्टर मोहम्मद जाहिद को तैनात कर दिया गया है। इंचार्जेस जो है वो VC की अदम मौजूदगी में इंतजामी, तालीमी, मालियाती और दीगर मामला संभालेंगे, जबकि तालीमी साल मुकम्मल होने से कबल मिजाज अथॉरिटी मंजूरी हासिल करने के अख्तियारात भी हासिल होंगे। इसके अलावा वाइस चांसलर की जानिब से फरहम की गई रकूम को मुकर्ररा हुदूद के तहत खर्च करने का भी काम जो है वो उनके सुपुर्द किया गया है। जी आयमा, हमारे साथ ही रहिएगा।
जामे कराची के 84 तलबा और तालिबा को एमफिल, पीएचडी और एमएस की डिग्रियां तफवीज़। 19 तलबा को पीएचडी, 54 तलबा को एमफिल की डिग्रियां तफवीज़ की गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं। आयमा हमारे साथ मौजूद है। आयमा, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए जामिया कराची की जानिब से जो है वो 84 तलबा और तलबात को एमफिल, पीएचडी और एमएस की डिग्रियां जो है वो तकवीज़ कर दी गई हैं। जामिया कराची ने 19 तलबा और तलबात को पीएचडी, जबकि 54 तलबा और तलबात को एमफिल की डिग्रियां जो है वो तकवीज़ की हैं। इसके अलावा जो है वो 9 तलबा को कोर्स वर्क 30 क्रेडिट आवर्स मुकम्मल करने पर एमएस की डिग्री तकवीज़ की गई है, जबकि 2 तलबा को एमएस मास्टर्स ऑफ सर्जरी की डिग्री जो है वो तकवीज़ की गई है। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान। महकमा स्कूल तालीम के कराची समेत 6 रीजन के रीजनल डायरेक्टर्स को तब्दील करने का फैसला कर लिया। तमाम रीजन में अगले माह रीजनल डायरेक्टर्स की तैनातियां सर्च कमेटी के जरिए की जाएंगी। महकमा स्कूल तालीम ने इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इसी पर तफसीलात जानेंगे आजाद नूहरियों से। आजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के कराची समेत डिवीजन के रीजनल डायरेक्टर्स को जो तबादले करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, स्टेट हैदराबाद और मिर्पुर रीजन के डायरेक्टर्स को तब्दील की जाएंगे। तमाम रीजन में रीजनल डायरेक्टर्स की तैनातियां सर्च कमेटी करेगी। सूबे वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की सरबराही में बनाई गई सर्च कमेटी रिव्यू करेगी। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने इंटरव्यू के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया। लाड़काना और सखर रीजन के लिए इंटरव्यू 1 अप्रैल को 2 बजे होंगे, जबकि हैदराबाद और मिर्पुर रीजन के लिए इंटरव्यू 2 अप्रैल 2 बजे होंगे, जबकि कराची और शहीद हैदराबाद रीजन के लिए इंटरव्यू 3 अप्रैल को 2 बजे लिए जाएंगे, जिसके बाद में स्कूल होगी। स्कूल के बाद में इनमें जो एलएफ के हामिल होंगे उनको रीजनल डायरेक्टर तैनात कर दिया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया आजाद। सिंध हुकूमत के मातहत माहीगीरों के इदारे फिशरमैन्स को कोऑपरेटिव सोसाइटी में इख्तियार की सर्द जंग। आपको बताएं, सिंध हुकूमत के मातहत माहीगीरों के इदारे फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में इख्तियार की सर्द जंग 2 रोज़ कबल इदारे का इंतजाम महकमा कोऑपरेटिव ने संभाल लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, ये सिंध हुकूमत का इदारा है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बुनियादी तौर पे माहीगीरों के फलाह व बहबूद का काम करता है। लेकिन इस इदारे का हाल तो वैसे ही गुज़श्ता 2 साल से ख़राब है, लेकिन अब महकमा कोऑपरेटिव और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के दरमियान एक सर्द जंग छिड़ी हुई है। कुछ अर्सा कबल भी था, लेकिन अब फिर महकमा कोऑपरेटिव ने उसका इंतज़ाम संभाल लिया 2 रोज़ कबल, जिसके खिलाफ जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं सोसाइटी के जाहिद इब्राहिम, वो अदालत गए और ज़िला गरबी की अदालत ने सिविल सीनियर जज ने एक फैसला दिया है, जिसमें इंतज़ाम जो है एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले करने का फैसला दिया और कहा है कि महकमा कोऑपरेटिव को कोई मुदाखलत नहीं करना चाहिए, मजीद कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। अलबत्ता महकमा कोऑपरेटिव के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जो इस वक्त बराजमान है, वो ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बुनियादी तौर पे एक मुंतखब इदारा होता है, इसका मुंतखब बोर्ड होता है, चेयरमैन होता है, लेकिन 2-2.5 साल से एक एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन इसको भी अख्तियारात के हवाले से इदारों के दरमियान जंग चल रही है, जो माहीगीरों के बेहतरी के लिए कोई भी काम नहीं कर पा रहा। जी बहुत शुक्रिया आजीज़ जमाली। को बताएं, मुनाफाखोरों के गिर्द शिकंजा सख्त कार्रवाइयों का 23वां रोज 3,415 गिरा फरोशों पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए जुर्माना आयद। 34 दुकानें सरबा मोहर की गई। तफसीलात जानिए हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची सलीम राजपूत की हिदायत पर महंगाई के खिलाफ इक़दाम जो है वो 23वें रोज भी जारी रहे। अफसरान ने 10,072 मकामात पर मजमूई तौर पर कीमतें चेक की हैं। 3,415 गिरा फरोशों पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए का मजमूई तौर पर अब तक जुर्माना किया जा चुका है, जबकि 34 दुकानें जो हैं वो सरबे मोहर की गई हैं। जमेरात की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो 102 गिरा फरोशों पर 8,73,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना किया गया। 432 मकामात पर मजमूई तौर पर ये कीमतें चेक की गई हैं। जिला जनूबी में 30 गिरा फरोशों पर 3,59,000 रुपए जुर्माना किया गया। जिला शर्की में 15 गिरा फरोशों पर 60,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिला गरबी की अगर बात की जाए तो 7 गिरा फरोशों पर 1,11,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह जिला वस्ती में 21 गिरा फरोशों पर 1,34,000 रुपए जुर्माना किया गया। जिला मलीर में 8 गिरा फरोशों पर 37,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। जिला कोरंगी में 15 गिरा फरोशों पर 1,47,000 रुपए मजमूई तौर पर जुर्माना किया गया, जबकि जिला केवाड़ी में 6 गिरा फरोशों पर 25,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद।
सुकरण माड़ी जलवारी में शहरियों की हलाकत की जुडिशल तहकीकात और मुलजिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्त DIG बेनज़ीर आबाद ने अबूरी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी है। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़ बताइएगा। बिल्कुल, सकरन माड़ी जलवानी में शहरियों की हलाकत और शहरियों की हलाकत में जो है जुडिशल इंक्वायरी और मुलजिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आज DIG जो नवाब शाह हैं वो उन्होंने पूरी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है, जिसमें उनका कहना था कि नामालूम मुलजिमान को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ इक़दाम भी किए गए हैं। मुलजिमान के शिनाख्त के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। अदालत ने DIG शहीद बेनज़ीर आबाद को 25 अप्रैल को तलब कर लिया। अहद समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब की है। अदालत ने केस का चालान जमा ना करने की हिदायत की थी। अदालत ने केस का चालान जमा ना करने से मुतल्लिक जारी हुक्म इम्तना में भी तौसीक कर दी है। सानिया सकरन में जो है दाखिल की तलाश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की फायरिंग से 4 अफराद जो है वो हलाक हो गए थे, जबकि वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए वकीला की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। जी मुमताज़, हमारे साथ ही रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट में 1 साला बच्चे समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। इसी पर तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, इस हवाले से बताइएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नेमतुल्लाह पुलपोटू की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 1 साला बच्चे समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि उनका 1 साल बच्चा कृष्णा, जो कि थाना जो है ब्रिगेड की हदूद से लापता हुआ था, ताहाल पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तफ्तीशी अफसर भी आज अदालत में पेश हुए। उनका यही कहना था कि जो CCTV फुटेज मौसूल हुए उनको फॉरेंसिक लेबॉरेटरी के लिए लाहौर रसार कर दिया गया, लेकिन ताहाल जो है कोई पेशरफ सामने नहीं आई है और फुटेज भी जो है काफ़ी क्लियर नहीं है। और फुटेज जो CCTV फुटेज हैं, वीडियोज़ हैं, उनको मज़ीद साफ़ करने और क्लियर करने के लिए दोबारा वो वापस लेबॉरेटरी भेज दिए गए हैं। दीगर लापता अफराद के अहल खाना भी जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं, जिसमें खलील रहमान जो कि 2023 से लापता है और उस मुतल्लिक भी आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तफ्तीशी अफसर ने भी अदालत में अपनी अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें तफ्तीशी अफसर का कहना था कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। लिहाजा अदालत ने लापता अफराद की ट्रैवल हिस्ट्री भी जो है वो हासिल करने, लेने और जमा करने की हिदायत कर दी है। साथ ही साथ लापता अफराद की तस्वीरें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दीगर मीडिया सोर्सेज में शाया करने की भी हिदायत कर दी है और आइंदा समाअत तमाम तफ्तीशी अफसरान से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है और दरख्वास्तों की जो मजीद समाअत है वो 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी है। मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बैंकों को मुख्तलिफ मुद्दत के लिए मजमूई तौर पर 2705 अरब रुपए फराहम कर दिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक ने मनी मार्केट सिस्टम में जो सरमाए की कमी को पूरा करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है, जिसके तहत कमर्शियल और इस्लामिक बैंकों को मजमूई तौर पर 2705 अरब रुपए फराहम कर दिए। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ मुद्दत के ये ओमो हैं, जिसमें कहा जाए 7 रोज़ के लिए कमर्शियल बैंक को 401 अरब 85 करोड़ रुपए फराहम किए, 28 रोज़ के लिए 2084 अरब रुपए फराहम किए और इस्लामिक बैंकों को 7 रोज़ पर 194 अरब रुपए फराहम किए गए, जबकि इसके साथ ही इस्लामिक बैंकों को 28 रोज़ पर 25 अरब रुपए फराहम किए गए और ये जो रकम फराहम की गई है उस पर बैंक जो है शरह मुनाफा 22.07% तक अदा करेंगे सालाना के हिसाब से। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। शहर कैद में रमज़ानुल मुबारक की तीसरे जुमे की सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर नफरी तैनात है, जबकि पुलिस नाका लगाकर स्नैप चेकिंग भी कर रही है। मजीद आगाह कर रहे हैं शाहरुख शाह। जी शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कोरंगी के इलाके ब्रुक्स चौरंगी से और KIA पुलिस मसाजिद की सिक्योरिटी पे जो मामूर तो है उसी के साथ साथ स्नैप चेकिंग पे भी जो है वो मसरूफ है। इस वक्त जो है वो मसाजिद के करीब जो है वो डिप्लॉयमेंट की गई है, मसाजिद पर डिप्लॉयमेंट की गई है, इमाम बारगाहों पे डिप्लॉयमेंट की गई है। पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। नादिर मौजूद है। नादिर, मुझे बताइएगा कि क्या किस तरीके से डिप्लॉयमेंट की गई है और मसाजिद के साथ साथ स्नैप चेकिंग का अमल भी जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये हमारे IG साहब, एडिशनल IG साहब, DIG साहब, SSP कोरंगी साहब, SHO KIA और DSP कोरंगी साहब के हुक्म से ये मस्जिद, इमाम बारगाह हैं, सब पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। और स्नैप चेकिंग का ये है कि दाखिली खारजी रास्तों पे अफसरान बाला के हुक्म से चेकिंग है
کہ لوگوں کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت رکھیں. تقریباً 25 سے 30 مسجدیں ہیں اور 8 سے 7 امام بارگاہ ہیں. سب پہ ڈپلائمنٹ ہے, سب پہ افسران بالا کے حکم سے ماشاءاللہ سے سب پہ ڈپلائمنٹ ہوئی ہوئی ہے, پولیس لگی ہوئی ہے سر. جی بالکل, دیکھیں میں اپنے کیمرہ مین سے اگر میں ریکویسٹ کروں واحد سے کہ اگر وہ دکھائیں کہ مساجد پہ بھی جو ہے وہ یہ مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ ہی جو ہے وہ پولیس اہلکار بھی یہاں پہ تعینات ہے مسجد میں, اور جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی کورنگی انڈسٹریل ایریا تھانے کی حدود میں جو پولیس موبائلز ہیں وہ جو ہے وہ تعینات ہیں مختلف مساجد پہ اور امام بارگاہوں پہ پولیس اہلکار تعینات ہیں, اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اسنیپ چیکنگ کا عمل ہے مشکوک افراد کو روکنے کا, ان کو چیک کرنے کا, وہ بھی اس وقت جو ہے وہ جاری ہے. جی ناظرین, مہنگائی کے باعث شہری عید کی خریداری میں محتاط ہو گئے. مدینہ سٹی مال میں کاروبار سست روی کا شکار ہے. تاجر فیاض میمن کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث کاروبار متاثر ہے. جو چیز 1000 کی تھی وہ 1500 کی ہو گئی ہے. کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں. جی کاوش, آگاہ کیجیے گا. مبارک کے دوسرے عشرے کے آغاز سے ہی عید کی جو خریداری ہے اس کا رجحان پایا جاتا ہے اور شہری جو ہے بڑی تعداد میں مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں. اس وقت کیا پوزیشن ہے مارکیٹوں کی؟ میرے ساتھ تاجر فیاض میمن موجود ہے, ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ جو حالات مہنگائی کے جس زور سے ہے اس حساب سے اگر مارکیٹوں میں کام کا دیکھا گیا تو کاروبار کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. گیس مہنگی ہونے کے چکر میں جو ہے گارمنٹس آپ کا کپڑا مہنگا ہوا. کپڑا جو مہنگا ہوا اس کی وجہ سے زیادہ تر ریٹیلر ہے, اس نے کمانا وہی. اگر پچھلے سال دیکھا جائے جو چیز 1000 روپے کی تھی آج وہ 1500 روپے کی, کیونکہ ریٹیلر کو 1200 میں جب آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے 200-300 وہ بھی کمائے گا. تو وہ ملک کی حالات کا جو حالات ہوئے میں اس میں تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. نہ عوام کے پاس پیسہ ہے اور نہ دکاندار اس طبقے کا بھی رکھ رہا ہے. خاص طور پہ مڈل طبقہ جو دکان ریٹیلر, ایک چھوٹا دکاندار جو ہے, میں نہیں سمجھتا, بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے, بہت پھنسا ہوا ہے ابھی تو. اور عوام کا رش تو بالکل بھی نہیں ہے. جو راتوں کو جو دن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو حالات ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, راتوں کو بھی یہی پوزیشن ہے. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. بالکل, دیکھیں اس وقت میرے ساتھ تاجر فیاض میمن موجود تھا. ان کا کہنا ہے کہ اوور آل بہت سارے امپیکٹ ہیں جس کی وجہ سے عید سیزن جو ہے متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. خاص طور پر بات کی جائے بجلی اور گیس کے ٹیرف میں جس طرح اضافہ ہوا, انڈسٹریوں کے مشکلات کے سامنے آیا, تو وہیں پر ریٹیلرز بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جی عید سے قبل عوام کی خوشیوں کو دوبارہ کرنے کے لیے سفاری اور چڑیا گھر میں نئے جانور آ گئے. چڑیا گھر میں شیروں اور اڑیال کا ایک جوڑا, جبکہ سفاری پارک میں بھی شیروں کا جوڑا پہنچ گیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے ہم ٹیم نمائندہ حملہ نثار سے. جی حملہ, بتائیے گا. جی, عید سے قبل شہریوں کے لیے سفاری اور زو کی جانب سے تحفہ پیش کر دیا گیا ہے اور زو اور سفاری میں نئے جانور لائے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایڈیشنل ڈائریکٹر عابدہ رئیس صاحبہ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. آپ مجھے بتائیے کون کون سے جانور لائے گئے ہیں, کس طرح دیکھ بھال کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی, یہاں پر ماشاءاللہ سے جو ہے شیروں کا ایک پیئر آیا ہے, ایک سفاری پارک میں پیئر موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اڑیال کا پیئر موجود ہے جو کہ آیا ہے اس وقت ہمارے پاس. جو ہمارے پاس شیر آئے ہوئے ہیں, جو چڑیا گھر میں شیر ہیں, ان کا نام جو ہے وہ ڈینجر اور شیری ہے اور ان کی عمر 8 اور 6 سال ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے پاس سفاری پارک میں ہے اس کا ایک کا نام, میل کا نام جو ہے وہ الفا ہے اور فیمیل کا نام ببلی ہے, اور ان کی بھی عمر تقریباً یہی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر بھی موجود ہیں. سر مجھے بتائیے گا, صحت مند جانور لائے گئے ہیں, کس طرح دیکھ بھال کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے سامنے موجود ہیں. شیر ماشاءاللہ سے بہت صحت مند ہے اور جس طرح ہم اپنے تمام جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اس کی بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں. پوما کی عمر بھی تقریباً 7 سے 8 سال کے درمیان ہے, لیکن نام نہیں رکھا گیا. عنقریب ہم اس کے لیے کوئی مقابلہ منعقد کریں گے جس میں بچوں کے لیے انویٹیشن کال کی جائے گی تاکہ اس کا نام رکھیں اور اس کا نام پھر تجویز کیا جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر اور عابدہ رئیس صاحبہ دونوں موجود ہیں جنہوں نے بتایا کہ یہ جانور لائے گئے ہیں اور بلا شبہ عید سے قبل شہریوں کے لیے ایک تحفہ ہے تاکہ وہ یہاں جب آئیں گے تو یہ نئے جانور دیکھ کے خوش بھی ہوں گے. اور عید کے دوران جو ہے عیدی ان کو سفاری اور زو کی جانب سے دی گئی ہے. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا